Hello students, hello all IPCC students. This is my first video audio clips जहाँ मैंने आपको एक तरह से एक कमिटमेंट करी थी, आपसे ये कमिटमेंट करी थी कि मैं आपको डेली बेसिस पे अपनी ऑडियो क्लिप्स देता रहूँगा ऑन जीएसटी रिवीजन लेक्चर्स, जहाँ पे आप जीएसटी को अपनी पॉकेट्स में लेकर के घूम सकते हैं, जहाँ आपको जिस टाइम जहाँ चाहे आप अपनी इसको ऑडियो क्लिप्स को एयरफोन्स को यूज़ करके आप किसी भी टाइम पे अपना जीएसटी का पूरा रिवीजन ले सकते हैं। और ये आपकी बेनिफिशियल होगा आपके 1 डे बिफोर एग्जामिनेशंस पे, उसमें भी आपको यूज़फुल करेगा। और आपको बिना बुक्स को उठाए हुए आप जस्ट मेरी ये लेसन करिए और अपने एग्जामिनेशंस में आप जा सकते हैं। यहाँ तक मैं आपको इतना श्योर दे सकता हूँ कि आपको ये ऑडियो क्लिप्स को सुनने के बाद आपको अटेम्प्ट करने अपने क्वेश्चंस को, तो आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी इतनी हो जाएगी कि आपको ये पता लग जाएगा कि दिस इज़, जब आप बार बार सुनेंगे इस चीज़ को। सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग ऑफ योर टाइम, नाउ स्टार्ट। स्टूडेंट्स, मैं आज कवर करने जा रहा हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी में आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए द वर्ड जीएसटी इज़ टू बी लेविड ऑन व्हाट, कि आपका जो जीएसटी है वो किसके ऊपर लगता है। जीएसटी इज़ टू बी लेविड ऑन द सप्लाई, GST is levied on the supply. So because if the GST is to be levied on the supply word, then the various supplies are covered under the GST Act. There are the different supplies are covered under the GST Act, that are like as a taxable supply, like a non-taxable supply, like a nil rate supply, like a zero rated supply, like a exempt supply, like a wholly exempt supply. There are the various supplies. So if you remember, what is the taxable supply? If you remember the taxable supply, that is the taxable supply means a supply on which the GST is to be levied, But if you remember the non-taxable supply, that is the non-taxable supply means on which till date there is no GST is to be levied. Till date there is no GST is to be levied. That is called non-taxable supply. Non-taxable supply, the example of the non-taxable supply is petrol. If you remember the petrol, high-speed diesels, natural gas, as well as पेट्रोल्स, हाई स्पीड डीजल्स, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल्स, एज वेल एज आप इसमें ये सकते हैं मोटर स्प्रिट, दैट इज़ पेट्रोल्स को ही बोला जाता है मोटर स्प्रिट, दैट इज़ कॉल्ड मोटर स्प्रिट. So students, this is a non-taxable supply that are not covered under GST. That is today on these supplies just are levy the excise duty. That is no GST is to be levied on these supply till date, right? So this is a non-taxable supply. Third supply is the exempt supply. If you remember the exempt supply, that is exempt supply means a supply on which the GST is to be levied, but is exempt. So therefore the exempt supply is the GST is to be levied, but it is exempt from GST. Third is fourth one is that is the zero rated supply. Zero rated supply means, if you remember, in final level the IGST Act is applicable, but that IGST Act is not covered under the IPCC syllabus. So therefore the IGST Act, the section 16 of IGST Act says that zero rated supply means that is export of goods or services, or as well as if you supply the goods or services to the SEZ units or the developers, that is called zero rated supply, that are covered under section 16 of IGST Act. So students, ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो मेरा ऑडियो क्लिप्स है, मैं बीच में आपको बोल रहा हूँ, ये ऑडियो क्लिप्स आपका रहने वाला है हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स. अगर किसी को चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है तो मैं आपको हिंदी में भी थोड़ा सा यहाँ पे इंटरप्रेट कर दूंगा. सो यहाँ पे आपको जीरो रेटेड सप्लाई समझ में आया होगा. अनदर इज nil rate supply. If you remember the nil rate supply, that is nil rate supply means the on which the GST is to be levied, but at a nil rate, right? But at a nil rate, that is the no rate is to be exist in the tariff. That is the tariff has no rate in respect of the nil rate supply. So therefore this is called as nil rated supply.
Apart from that, the wholly exempt supply means the supply which is wholly exempt from the GST. So there are the various types of supply, that is taxable, that is non-taxable, that is zero rated supply, that is exempt supply, that is wholly exempt supply, as well as nil rated supply. But always remember the exempt supply includes nil rate supply, wholly exempt supply, as well as the non-taxable supply. Exempt supply includes nil rate supply, non-taxable supply, as well as the exempt supply. Nil rate supply, non-taxable supply, as well as the wholly exempt supply. Exempt supply includes nil rate supply, non-taxable supply, as well as wholly exempt supply. So this is the nil rate supply. So therefore the exempt supply. If you remember, if exempt supply includes nil rate, non-taxable, as well as wholly exempt supply, then you remember exempt supply will also part of the aggregate turnover. Whenever you apply for the registration, then you consider the aggregate turnover in the preceding financial year does not exceed rupees 20 lakh or the 40 lakh in as well in respectively in case of goods. So for the purpose of that, aggregate turnover includes also the exempt supply, and if aggregate turnover includes exempt supply, then exempt supply also includes non-taxable, wholly exempt, as well as nil rate supply. So स्टूडेंट, अगर आपको ये चीज़ पॉइंट समझ में आ गया है तो फिर आप दिमाग में ये रखें कि एग्जाम सप्लाई में 3 सप्लाई कवर होती है, nil rate, wholly exempt supply, as well as non-taxable supply. But non-taxable supply is a part of the exempt supply that will also part of the aggregate turnover for the purpose of registration as well as for the composition scheme. Because aggregate turnover हमेशा याद रखना composition as well as आपकी रहेगी किसके लिए, कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए भी रहने वाली है, आपकी देखी जाती है, साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन के लिए भी देखी जाती है. सो स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. इसके अलावा अब आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको हम पर्सन से यहाँ पे लेते हैं जीएसटी. तो अगर हम जीएसटी पर्सन से ले रहे हैं तो दैट मीन्स अगर हम पर्सन से जीएसटी ले रहे हैं तो देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ पर्सन, एक टैक्सेबल पर्सन एज अ डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, एंड द थर्ड वन इज द CTP. फर्स्ट वन इज द डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, second one is the taxable person, third one is the CTP. Taxable person means a person who is registered as well as the liable for registered under the GST, that is called taxable person. But the second one is deemed distinct person. If you remember, deemed distinct person उस person को बोला जाता है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर एक हेड ऑफिस अगर अपने ब्रांच को कुछ गुड्स सेल कर रहा है और ब्रांच का अगर उस हेड ऑफिस का ब्रांच अगर एक ही स्टेट में है, अगर उस हेड ऑफिस का ब्रांच अगर एक ही स्टेट में है, तो सिंगल स्टेट में अगर उसके पास एक से ज़्यादा ब्रांचेस हैं तो उस केस में ऑप्शनली है कि वो जो स्टेट हैं, स्टेट में जो ब्रांचेस हैं वो ब्रांचेस ऑप्शनली रजिस्ट्रेशन ले सकती हैं. उनके पास ऑप्शन है अंडर सेम पैन पे वो रजिस्ट्रेशन ले सकती हैं. बट एट द सेम टाइम अगर हेड ऑफिस की मल्टी स्टेट में आपकी ब्रांचेस हैं तो इन दैट प्रोविजन कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22 के अंदर उन रजिस्ट्रेशन को ब्रांचेस को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कंपलसरी. सेम स्टेट में है तो ऑप्शन है, ऑप्शनली आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं अंडर द सेम पैन, बट अगर मल्टी स्टेट में आती हैं तो फिर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लगता है. अगर आपकी सेम स्टेट में ब्रांचेस हैं और हेड ऑफिस से अगर ब्रांच को ट्रांसफर हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड नॉट ए सप्लाई. उसको सप्लाई नहीं बोला जाता, उसको बोला जाता है स्टॉक ट्रांसफर. और इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक ट्रांसफर में कोई भी टैक्स इनवॉइस इशू नहीं होती. वहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, रूल 55 का चालान इशू करना पड़ेगा. इसके अलावा अगर आपका दूसरे स्टेट में अगर आपका कोई ब्रांचेस है और वहाँ पे आपका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लगता है और हेड ऑफिस अगर ब्रांच को कुछ सप्लाई करती हो तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उन दैट पर्टिकुलर उस केस में आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा और जीएसटी भी देना पड़ेगा. तो आपको समझ में आना चाहिए कि टैक्स इनवॉइस कहाँ इशू होना है, डिलीवरी चालान रूल 55 के अंदर जो लगेगा वो आपको कहाँ इशू करना पड़ेगा. इसके अलावा स्टूडेंट्स, इस चीज़ के अलावा फिर आपको ध्यान रखना है कि आपका CTP कौन होता है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन. कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की हम बात करेंगे जब रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर जाएंगे तो सेक्शन 20 आपका 7 आता है जहाँ पे आपको CTP और RTP के बारे में डिस्कशन किया गया है. तो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हम CT का डिटेल डिस्कशन करेंगे, बट फिलहाल इतना याद रखना है कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मीन्स अ पर्सन who is supplying the goods or services to a state or to the state where there is no fixed place of business or the establishment. Where there is no fixed place of business or establishment, that is called the casual taxable person.
बट स्टूडेंट्स एक बात याद रखना है, सीटीपी के अंदर सीटीपी को हमेशा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लगता है और एनआरटीपी को भी, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लगता है। इनको कंपलसरी लगेगा तो इनका रजिस्ट्रेशन का वैलिडेशन रहेगा 90 डेज, फर्दर एक्सटेंशन 90 डेज का आपको मिल सकता है सफिशिएंट कॉस्ट पर। इसके अलावा सीटीपी को एस्टिमेटेड टर्नओवर पे, अपना टैक्स लायबिलिटी एस्टिमेटेड टर्नओवर पे आपको एडवांस टैक्स जमा करना पड़ता है और एडवांस टैक्स जमा करने के बाद ही उसको क्या मिलता है, रजिस्ट्रेशन मिलता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी मैं डिटेल डिस्कशन सीटीपी एंड आरटीपी की